In this video, we will talk about what is computer. Now let's start from the definition. Computer is an electronic device. Computer is such an electronic device that can easily solve complex problems that we face in our daily life. Just like how to make a proper document, how to edit the image, and such other problems. It basically performs these tasks by taking data as input. So the first function that a computer performs is to take the data as input, then process that data by calculations, and then store and recall that data and produce the desired output. So these are the basic four functions that a computer perform in order to solve any of our complex type of problem. And let me tell you that the word computer is derived from a Latin word computare. Computare is a Latin word which means to calculate or count. So initially the objective of computer was to invent a device which can perform calculations at an enormous speed. यानी इनिशियली हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम ऐसी एक डिवाइस बनाएं कि जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट स्पीड पे परफॉर्म करती हो. But as you can see that nowadays computers are versatile. Computer is a versatile machine. Versatile का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ एक काम ना कर सके बल्कि जनरल पर्पस हो वो कई काम कर सके. ठीक है. So now computer has become from a counting machine to a versatile machine that besides calculation can also do word processing, image or video editing, presenting slides, and browsing information, and countless of such other useful tasks. ठीक है. सो कंप्यूटर जो है वो आजकल एक वर्सेटाइल मशीन हो गया है और एक ऐसी मशीन कि जो ये तमाम काम जो है वो इंसानों से बहुत ज्यादा फास्टर और एफिशिएंटली कर सके. ठीक है. इट इज फास्टर एंड एफिशिएंट देन ह्यूमन बीइंग्स. its power of remembrance is its speed is much more than a human being. So now let's understand the computer by this diagram. As you can see in the diagram that there are different types of computer, but this type of computer is called as desktop computer. Other types may be laptop and server, and even mobile phone is also a computer system. ठीक है. तो ये सारी इसकी वेराइड फॉर्म्स हैं कंप्यूटर की, बट टिपिकली अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. जो हम नॉर्मली हमारे होम्स एंड ऑफिस में होते हैं कंप्यूटर, इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है. ठीक है. So this is a desktop computer. Now let's understand the main components of a computer. Let's start from input devices like you can see here mouse and keyboard, which are used to give data and information to the computer. अच्छा, here the word input means, input के क्या meaning होते हैं, that we want some data or instruction to give to the computer so that computer can do some processing on it. For example, if I want to add two numbers, let me write it for you. Let's suppose that we want computer to add two numbers, 2 and 3.
and we want computer to do some processing on these numbers. This processing is this plus. We want this data 2 and 3, and we want computer to add these numbers. So add or sum is the command, and 2 and 3 are the examples of data. So first we will have to give this data, means 2 and 3, वाया कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, यानी थ्रू कीबोर्ड हमें ये 2 और 3 कंप्यूटर तक पहुंचाने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो कमांड है वो भी हमें इसको देनी होगी। अदरवाइज कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी एन इडियट बॉक्स, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन हम जो देंगे फिर उसके मुताबिक वो उसको प्रोसेस करेगा। सो फर्स्ट जो आपका फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो इनपुट होता है। इनपुट हम इन डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। देयर आर so many other devices through which we can give input to the computer, but the principal or the main important devices are mouse and keyboard। और उसमें भी जो कीबोर्ड है वो एक प्रिंसिपल यानी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। और इवन अगर आप कीबोर्ड को प्लग आउट कर दीजिए कंप्यूटर में से और फिर कंप्यूटर को स्टार्ट कीजिए तो वो एक एरर मैसेज शो करता है कि देयर इज नो कीबोर्ड अटैच्ड टू दिस कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर ये शो करते हैं, कुछ कंप्यूटर नहीं भी करते, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि अगर कोई स्टैंडर्ड डिवाइस प्रेजेंट ना हो तो उसका एरर मैसेज शो होता है। सो कीबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एंड फ्रॉम दिस इनपुट डिवाइस द डाटा रीच टू द सिस्टम यूनिट। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम यूनिट। बहुत से लोग इसको सीपीयू भी आम अल्फाज में बोल देते हैं, but the correct term for this whole casing and whole unit is system unit। So from input device the data reaches to the system unit, that is पूरी ये जो आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी दिख रही है 2+3, ये इंस्ट्रक्शन सिस्टम यूनिट पे पहुंचेगी। and there is a chip in this system unit which we call CPU, that is the abbreviation of central processing unit। ठीक है, there is a chip CPU, central processing unit। so central processing unit is also called as the brain of the computer। तो इस जो यूनिट है इसको तो हम सिस्टम यूनिट कहेंगे, और इसमें एक चिप है जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। सो इस पूरे सिस्टम को सीपीयू नहीं बोलना चाहिए, इसको तो हम सिस्टम यूनिट बोलेंगे। और इसके अंदर जो सबसे अहम डिवाइस है या सबसे अहम चीज है जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं वो सीपीयू होता है। अब सीपीयू का काम क्या होता है कि वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी 2+3 अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ ये इनपुट डाटा के तौर पे यहाँ पे आया। सीपीयू का वर्क क्या है कि ये इसको प्रोसेस करेगा, यानी इस 2+3 को 5 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, सो 5 फाइनली विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो ये जो आउटपुट है आपका, ये यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें जो प्रिंसिपल आउटपुट डिवाइसेस है वो ये स्क्रीन होती है, इस पे शो हो जाएगी। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स, टेक्स इनपुट, प्रोसेस, and that input is processed and then produces the desired output। and also there is a device which is called as hard disk, तो उसमें हम स्टोर भी कर लेते हैं उस रिजल्ट को और उस डाटा को। so another function of computer is to store the data and the result। ठीक है, and do remember that here the data means any raw facts and figures which can take the form of text, which can take the form of pictures। just like ये तो मैंने भी आपको एक टेक्स्ट की एग्जांपल दी ना, अगर हम इमेज को एडिट कर रहे हैं तो उस केस में जो पिक्चर है वो हमारा इनपुट हो जाएगी। so data can be in the form of text, data can be in the form of picture, data can be in the form of
साउंड, किसी साउंड को हम एडिट करना चाह रहे हैं, उसकी पिच हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो साउंड इनपुट हो जाएगा। इसी तरह कोई वीडियो है, उसमें से हम कुछ हिस्सा काटना चाह रहे हैं, कुछ उसको मर्ज करना चाह रहे हैं किसी और वीडियो से, तो वीडियो इनपुट हो जाएगा। सो डाटा कैन टेक नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ओनली, बट ऑल्सो कैन टेक द फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर को हम इनपुट करते हैं स्कैनर की मदद से। देन वी हैव साउंड, साउंड को हम इनपुट कर सकते हैं माइक की मदद से। इसी तरह वीडियो भी एक डाटा है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो डाटा मीन्स text, picture, sound, video, or any combination of these. And also do remember that it is not necessary that a computer is only in this form. ठीक है, कंप्यूटर के लिए इस फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उन्हीं की फॉर्म्स है। सो नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ computer and their organization in some more detail. For this purpose, we will have to look on ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, in which you can see the internal components of a computer. Here you can see that the process of data processing starts from input. इनपुट के थ्रू जो है वो डाटा जो है वो सीपीयू में जाएगा। सो द डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है इनपुट यूनिट से। दिस ब्लॉक शोज द इनपुट। इट कैन बी अ कीबोर्ड, इट कैन बी अ माउस, इट कैन बी एनी अदर इनपुट डिवाइस। ठीक है, सो द डाटा इज इनपुट टू द सीपीयू। इन सीपीयू दिस डाटा इज प्रोसेस्ड, but first it is received by one of its component CU। यानी CPU को आप देखें तो वो भी दो components में divided है। एक को हम CU कहते हैं और एक को हम कहते हैं ALU। CU is the place where the data is received। इनपुट से जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पे रिसीव होगा, और रिसीव होने के बाद देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है डाटा को। तो यहाँ से ये डाटा जो है वो जाएगा सीपीयू में, और सीपीयू से फिर जो है वो उसको सीयू रिसीव करेगा। सीयू देन सेंड दिस डाटा टू एएलयू। एएलयू इज द रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे असल प्रोसेसिंग होती है। और फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे 2+3 की इंस्ट्रक्शन थी, वो उसका रिजल्ट जनरेट कर देगा। एंड देन दिस रिजल्ट विल बी सेव्ड इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी हमारे पास जहाँ जो प्रोसेसर जिसके साथ काम करता है वो है रैम। रैम में जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लेटर ऑन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। बट द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट, देन इट गोज टू द सीपीयू। सीपीयू में सीयू को रिसीव करता है। सीयू रिसीव करने के बाद मेमोरी का इस्तेमाल करता है, और मेमोरी में जो है वो डाटा प्रोसेस करके स्टोर कर देता है। एंड फ्रॉम primary memory, that is RAM, the data can go to the output device, or it can be saved in a secondary memory device just like a hard disk। तो प्रोसेस होने के बाद डाटा जो है वो रैम में आता है, और रैम से वो किसी आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक कोई स्क्रीन है या प्रिंटर है उस पर सेंड कर दिया जाता है। या उस डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए आप किसी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जस्ट लाइक हार्ड डिस्क पे भी उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स और ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर: इनपुट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है डाटा और रिजल्ट को, और प्राइमरी मेमोरी जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग काम आती है। यानी प्रोसेसर जब उसको प्रोसेस कर रहा होता है तो वो मेमोरी से डाटा उठा रहा होता है और मेमोरी में ही स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, सो this diagram shows how computer actually works internally. So dear students, that's all for today. So I hope today you have got the idea that what really computer is.
and how it actually works internally. See you in the next class. नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मिलते हैं. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर.